Story coming in from the national capital. Ahead of the third day of the Delhi Assembly session, Atishi has claimed that the Aam Aadmi Party MLAs did not get entry inside the Assembly House. She stated that the Aam Aadmi Party MLAs were suspended from the House for 3 days for raising slogans of Jai Bhim, and today AAP MLAs are not even being allowed to enter the Vidhan Sabha premises. This is the big claim by Atishi. This has never happened in the history of Delhi Legislative Assembly that elected MLAs are not being allowed to enter the Assembly premises. Big claims made by LOP Atishi. In fact, Riyanka is joining us live on this broadcast. Riyanka, there's a tug of war between the BJP as well as the Aam Aadmi Party. On one hand, the Aam Aadmi Party is crying foul over the pictures that have been replaced in the Assembly, and on the other hand, the BJP has suspended these Aam Aadmi Party MLAs for creating ruckus, which was clearly evident. And still, we have Atishi crying foul. Absolutely, Deepak. Several developments happening there from the Delhi Assembly, where in fact we are seeing this several issues that are coming in. Given that Atishi, the leader of opposition, has said that the Aam Aadmi Party MLAs, the 21 Aam Aadmi Party MLAs, have not been allowed to enter the Vidhan Sabha premises. They have been blocked from outside only, behind the barricades, and this is coming in after Speaker Vijayendra Gupta earlier, day before yesterday, during the session, had in fact suspended all the Aam Aadmi Party MLAs, the 21 Aam Aadmi Party MLAs, from the House for the next 3 days. Remember, these 3 days are the extension that has been, given for the House for more discussion. But for the 3 days, the Aam Aadmi Party MLAs have been suspended for raising slogans of Jai Bhim. Remember, the Aam Aadmi Party has been constantly criticizing the Chief Minister for removing the pictures of Dr. B.R. Ambedkar and Shahid Bhagat Singh from behind the wall where the Chief Minister's chair is. But we know that the BJP has placed those portraits on a wall just beside the main wall where those pictures were earlier. Now, the Aam Aadmi Party, in fact, protested as well the previous day, the previous session, and they had, in fact... किससे ऑर्डर आया है? तो स्पीकर साहब ने ऑर्डर दिया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों किसको नहीं घुसने से मना किया? तो आप कह रहे हैं स्पीकर साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि 21 MLAs को विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने देना है। ये ऑर्डर दिया है स्पीकर साहब ने। जरा ऑर्डर दिखाइएगा, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि हाउस से सस्पेंडेड है 3 सिटिंग के लिए, लेकिन कैंपस के अंदर एंट्री कैसे रुकी है? वो तो हमने बात करके फिर जब ये हुआ था। नहीं, बात करके ऑर्डर दिखाइए। किसने दिया है ऑर्डर? अभी दोबारा नहीं, ऑर्डर किसने दिया है? आपको किसने कहा है? ये हमारे उसमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से ऑर्डर है। सेक्रेटरी दिल्ली विधानसभा की तरफ से ऑर्डर आया है। मतलब आदेश दिया उन्होंने। कहाँ पे है? दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। कहाँ पे दिखा है? कहाँ पे लिखा है कि दिल्ली विधानसभा के परिसर से बैन है? बताइए क्या है? तो क्या ऑर्डर? तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के परिसर में ही आपको बैन करने का ऑर्डर मिला हुआ है? बताइए। हाँ जी, विधानसभा परिसर आपकी बात क्या हो गया है? क्यों आप लोग को रोका जा रहा है? जो पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में, किसी भी विधानसभा परिसर से
किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। मैम, एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, बिल्कुल। इसमें कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं। ये क्या कैसे ऑर्डर रोका आपको गया? दिखा है? उसमें लिखा हमें है तो कि बस परिसर में भी एंट्री नहीं दी। इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। ठीक है, 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का।